The whole world, with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. पूरी दुनिया अपनी भूमि और समुद्र, अपने शहरों और गांवों के साथ एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं existed for any other purpose than to set beds for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. ये कभी भी लोगों को चारा डालने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं था। इसने धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े दिए, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस देते। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to end. और जैसे ही कोई चारा छूने के लिए ललचाता है, वह उसे घेर लेता है और फिर सब कुछ खत्म। Had, of course, ever been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves to be caught in a dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. बेशक दुनिया ने कभी भी उसके प्रति बहुत दयालुता नहीं दिखाई थी, इसलिए इस तरह से बुरा सोचना उसे एक अप्रत्याशित खुशी देता था। कई नीरस यात्राओं के दौरान वह उसके लिए एक प्रिय शुगल बन गया था। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में फंस गए थे, और अन्य जो अभी भी चारे के इर्द गिर्द चक्कर। As he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर टहल रहा था, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी भूरे रंग की झोंपड़ी पर पड़ी, और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजा। Nor as was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. ना ही उसे मना किया गया। आमतौर पर मिलने वाले कड़वे चेहरों की बजाय मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी था, बिना पत्नी या बच्चे के अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर, he took the money and thrust it into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसने पैसे लेकर अपनी जेब में रख लिए, फिर उसने चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वापस अपनी जगह पर रख दिया और चला। Rich pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played mazzolis with his guest until bedtime. उसने तुरंत दलिया का बर्तन आग पर चढ़ा दिया और उसे रात का खाना दे दिया। फिर उसने अपने तंबाकू के रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह अजनबी के पाइप और उसके खुद के पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था। अंत में उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला। सोने के समय तक वह अपने मेहमान के साथ मोलोजिस खेलता। Just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco, the guest was informed. बूढ़ा आदमी अपने दलिया और तंबाकू की तरह ही अपने विश्वासों के साथ भी उदार था। मेहमान को ये बताया iron works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor,
He was his cow. It was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for Crimry every day, and last month he had received all of 30 koroner in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in a very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 koroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and at once that in his days of prosperity his host had been a रामजोस आयरन वर्क्स में एक काश्तकर था और ज़मीन पर काम करता था। जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था तो उसकी गाय ही उसका भरण पोषण करती थी। हाँ, वह दबंग असाधारण था। वह हर दिन क्रीमरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में 30 कॉर्नर मिले थे। अजनबी को यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि बूढ़ा आदमी उठकर खिड़की के पास गया, एक चमड़े की थैली निकाली जो खिड़की के फ्रेम में एक कील पर लटकी हुई थी, और 3 झुर्रीदार 10 कॉर्नर के नोट निकाले। इन्हें उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने दिखाया, जानबूझकर से हिलाया, और तुरंत ये एहसास हुआ कि अपने समृद्ध दिनों में उसका मेजबान एक अमीर stuffed them back into the pouch. The next day both men got up in the good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. फिर उसने उन्हें वापस थैली में भर दिया। अगले दिन दोनों आदमी ठीक समय पर उठे। काश्तकार अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया हो तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। सेम टाइम द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। वे दोनों एक ही समय पर झोपड़ी से बाहर निकल गए। खेत मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और शुक्रिया कहा, और फिर दोनों अपने अपने सेम टाइम द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। वे दोनों एक ही समय पर झोपड़ी से बाहर निकल गए। खेत मालिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी अपनी जेब में रख ली। चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और शुक्रिया कहा, और फिर दोनों अपने अपने Later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pan, stuck in his hand, and got hold of the pouch with 30 koroner. लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह बस खिड़की के पास गया, एक शीशा तोड़ दिया, अपने हाथ से 30 कॉर्नर निकाले और थैली। He took the money and thrust it into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसने पैसे लेकर अपनी जेब में रख लिए, फिर उसने चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वापस अपनी जगह पर रख दिया और चला। This caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of forest. पहले कुछ घंटों में तो उसे परेशानी नहीं हुई, बाद में दिन में वह और मुश्किल होता गया, क्योंकि वह एक बड़े और उलझन भरे जंगल में फंस गया। उसने सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की,
लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे कि वह जंगल के अंत तक पहुँचे बिना ही चलता रहा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक हिस्से में ही घूम रहा है।